नाथ गुरुर्ब्रह्मा प्रभु जी प्रणाम। जय गुरुर्विष्णु श्री राम। गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 36 श्लोक स्नेह माता जी अनुवाद देखंतु। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अनुवाद। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे जय कृष्ण। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ ପାପୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାପୀ ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ନିଃସନ୍ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାର ହୋଇଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଚେତ୍ ଏବଂ ଅପି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେଉଁ ଭାବ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହି ପଦ ଦୁଇଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ ପାପୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ତ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଲକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କରେ ଯୁକ୍ତ ତଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଓ ସଖା ଅଟ। ତୁମ ଭିତରେ ପାପ କିପରି ରହିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମହାପାପୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନାୟାସରେ ପାର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ମହାପାପ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ସେହି ପାପାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସେ କିପରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସେ ଏବଂ ଅପି ପଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏହି ଶଙ୍କାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ କହିବାର ଭାବ ହେଉଛି, ପାପୀ କେବେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ମିଳିବା କଠିନ। କିନ୍ତୁ ମୋର କୃପା ଦ୍ୱାରା ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଦୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏଠାରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କାରଣ ସକାମ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ହେତୁ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସକାମ ଭାବରେ କରାଗଲେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନର ହେତୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ କଥା ମୁକ୍ତ ହୋଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଯେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ତା ଠିକ୍। ତଥାପି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ତାହାର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିନା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ତାହାର ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା କହିଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ଭଲ ଭାବରେ ପାର ହୋଇଥିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ନୌକାରେ ବସି ମନୁଷ୍ୟ ସମୁଦ୍ରର ଅଗାଧ ଜଳରାଶିକୁ ସହଜରେ ପାର ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସଂସାରରୁ ଅସଙ୍ଗ, ନିର୍ବିକାର, ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ବୁଝି ବହୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତଥା ଇହ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ପାପ ସମୁଦାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ରାଶିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାର ହୋଇଯିବା। ଏଠାରେ ଏବ ପଦର ଭାବ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏବ ପଦ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଭାବ ହେଲା, ଯଦି ନୌକା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ବା ସେଥିରେ ଛିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ତୋଫାନ ହୁଏ, ତେବେ କାଠ ନୌକାରେ ବସି ଜଳରାଶିକୁ ପାର ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ନୌକା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ
ନିଃସନ୍ଦେହ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତନ ହେତୁ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉନା କାହିଁକି ପରମାର୍ଥ ବିଷୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୁଝିବାକୁ ପୂର୍ବ କୁହାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ମହତ୍ଵକୁ ଅଗ୍ନିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। धन्यवाद माता जी, जय जगन्नाथ। इस श्लोक रे जो श्री भगवान ये अपि चेदसि पापेभ्यः, अपि माने जदिओ समस्त पापी मानक अपेक्षा अधिक पाप जदि करिथांत ताहले ज्ञान रूपी ज्ञान प्लावेन एव ज्ञान रूपी नौकार आश्रय नहीं सर्वं ब्रजिनम संपूर्ण पाप समुद्र संतरिष्यसे भल भाव पार हो जाए। माने ये श्री भगवान कहते जदि तुम्हें समस्त प्रकार पाप ठारू मध्य अधिक पापी हो जाता तब तेबे मध्य यही ज्ञान रूपी नौकार आश्रय नहीं तुम्हें संपूर्ण पाप भल भाव पार हो जाए। माने ये श्री भगवान ज्ञानर जमी माताजी ए पाठ करुले ज्ञानर माने महत्वता को दर्शाइबा पाई से कहते जदि तुम्हें पापी ही था तेबे मध्य किंतु ये पापी नुहंती किंतु श्री भगवान कहते जदि तुम्हें पापी ही था सबुठारु अधिक पापी होई था तेबे मध्य ए ज्ञान रूपी नौकार आश्रय तुम्हें संपूर्ण रूपे माने एठू तरी जाई तामाने एठी ज्ञान रूपी नौका मुख्य कारण होइथिबारु ज्ञान रूपी ज्ञान एते श्रेष्ठ होइथिबारु ताकू बुझाया पई बा तार महत्व को रखिबा पई श्री भगवान ए जगह रे कहउछंती कि जदि तुम्हें माने सबुठारु अधिक पाप भी करिथिबो तेबे मध्य ए ज्ञान द्वारा तुम्हें उद्धार हो जिवो बा पार हो जिवो। माने एठी जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक रे कहउछंती कि माने श्री भगवान वही ज्ञानर महत्व को माने देइछन्ति ज्ञानस्य महात्म्यम आह अपि चेदसि पापीभ्यः पापकुत्सो अपि स आकाशात। एठी आकाश सहित तुलना करी श्री चक्रवर्ती पाद कहउछन्ति कि जदि माने जो अपिचेद शब्द को व्यवहार करी भगवान ज्ञानर महात्म्य को माने कहउछन्ति एवं कहउछन्ति पापी मानक अपेक्षा भी जदि तुम्हें अतिशय पापी होइथांत तथापि मध्य तत्व ज्ञान द्वारा तुम्हें एथिरु मुक्त हो जाइथांत। माने एठी के प्रश्न जदि माने या परे आसी पारे कि जदि जने पापी हेथिवो से ज्ञान को बुझियो केमदी। श्री भगवान कहउछन्ति माने ज्ञान जदि तुम्हें ए जो ज्ञान हला कोटा जोटा माने आत्मज्ञान जोटा कि हम पढ़ी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शन तत्व ज्ञान जिते बड़े माने हृदय रे आसी था सेते बड़ कथाटा श्री भगवान ए जगह कहउछन्ति माने जो व्यक्तिर ज्ञान उत्पन्न हो जाइछि से भली प्रकार दुराचार तो हब नाही किंतु श्री भगवान जो यहाँ ए जगह रे कहउछन्ति वास्तव रे ये उत्तर को श्री मधुसूदन सरस्वती पाद यार व्याख्या कर जोटा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से व्याख्याटा को कोट करके यहाँ पर कही जगार मैंने से कहते जो अपिचेद शब्द ये असंभव शब्द ये श्री अर्जुन को व्यवहार हवा उचित नुह किंतु श्री भगवान एक व्यवहार एथिपाई करिसेंती कि माने यार ये जो व्यतिक्रम श्री भगवान देखाई से केवल ज्ञानर फल को बा ज्ञान रूपी माने आत्मज्ञान एते श्रेष्ठ ताकू दिखाइबा पाई श्री भगवान एठी प्रतिज्ञा रूप माने एठी कहउछंती जोटा असंभव हेले मध्य से संभव वाली श्री भगवान कहउछंती माने वास्तव रे एते पापी जे सबुठारु अधिक पापी सी आत्मज्ञान को बा श्री गुरुदेव को पाखु जीव कम पाई किंतु श्री भगवान एठी जो कहउछंती जदि से पापी हे थांता तथापि मध्य से ए नौकार बसी पार हो जाता कि ज्ञान एते श्रेष्ठ ये ज्ञान है आत्मज्ञान जोटा तत्व ज्ञान जोटा कि भगवत परक ज्ञान
जदि जड़े माने ज्ञान ज्ञानी हो जाए सी तापाई पुणी कौन प्रकार पाप बा संसार बंधन कौन माने रखे ना। एठी ये जो श्लोक अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः एठी श्री भगवान ये जो वाणी अच्छी श्री शंकराचार्य पाद ए श्लोक कहते कि सर्वज्ञान प्लवेन एव ज्ञानम एव प्लवम कृत्वा वृजिनम वृजनार्णवं पाप संतरिष्यसि। सब माने जिते भी पाप जड़े जदि अधिक अधिक पाप मध्य करिथाए ज्ञान रूप नौका द्वारा अर्थात ज्ञान को ही नौका बनाई समस्त प्रकार पाप समुद्र से बहुत भल भाव पार हो माने एठी जो मुमुक्ष जो माने से माने मध्य तांको पाई धर्म मध्य गोटे प्रकार पाप कारण मुमुक्ष जो माने मुक्ति पाती तांको पाई पुण्य मध्य बंधन होता है से माने पुण्य को मध्य माने ग्रहण करते नहीं कारण पुण्य जदि ग्रहण करेंगे पुण्य द्वारा से आउ थे जन्म नवाक पड़ो से पुण्यटा को भोगवाई तेणु से पाप होता बा पुण्य होता एठी मुमुक्ष मान को कह माने पापी तेणु एठी मुमुक्ष मान धर्म को बा पुण्य को पाप कह से भली व्यक्ति मध्य से पुण्य द्वारा पुण्य को मध्य से चाहती ना से पुण्य को मध्य पार हो जाते कारण आमे पाप को आमे डरते किंतु एटी शंकराचार्य पाद कहते मुमुक्ष व्यक्ति पुण्य को मध्य डरे सी जिते आत्मज्ञान बा भगवत संबंधित ज्ञान जिते से प्राप्त हो जाए सेते बड़े सी तार पुण्य रूप फल को मध्य से पार हो जाए थाए। ए श्लोक श्रीपाद श्रीधर स्वामी पाद से कहते कि श्री भगवान श्री अर्जुन देव को कहते माने जेबे तुम्हें श्री गुरु ठारू माने तुम्हें ज्ञान को प्राप्त हब सेबे तुम्हें से समय रे तुम्हें कौन करिवो ना समस्त पापकर्ता ठारू अतिशय पापकर्ता जदि तुम्हें हो भी था तो ताहारे पाप समुद्र रो तुम्हें ज्ञान रूपी नौका द्वारा भल भाव पार हो माने एठी जो आचार्यंकर सब मत सी माने पाप बा पुण्य दुईटा जांकर से फल को अति नगण्य से ताको विचार करिसंती जदि श्री रामानुज आचार्य पाद कहते जदि तुम्हें सबू पापों ठारू भी अधिक पाप जदि करिथांत तथापि मध्य पूर्व अर्जित पाप रूप समुद्र को मध्य तुम्हें एक ज्ञान रूपी आत्मज्ञान विषय का ज्ञान द्वारा तुम्हें नौका द्वारा सर्वथा रूपे पार हो पार तमाने एठी जदि ज्ञान रूपी नौका ज्ञान रूपी नौका कौटू आसिला से ज्ञान रूपी नौकार कर्णधार किए ना श्री गुरुदेव हेले तार कर्णधार कारण माने आमर पूर्वर कहते जमिति श्री गुरुंक शरण रे यदि आमे जीवा तापरे ही से आमको ए तत्व ज्ञान को प्रदान करिवे एवं से तत्व ज्ञान प्रदान हला परे आमे से ज्ञान रूपी नौकार यदि बसी जीवा से ज्ञान से नौका को चलांती गुरुदेव एवं से आमको सबु माने पाप समुद्र मध्य उद्धार करदेवे। एठी पाप शब्दटा केवल ज्ञानर महत्व को प्रकाश करने कहुई किंतु कौन पापी केबेरे कौन गुरुदेव पाक जाए नहीं बा से माने माने आत्मज्ञान को ग्रहण करती ना किंतु श्री भगवान एठी जो कहिचंती से ज्ञानर माने उपमा को दबापाई कहिचंती अपिचेदसी जदि माने तुम्हें पाप ठारू अधिक पाप भी तुम्हें करिथिबो तथापि मध्य ये ज्ञान एते महत् ये ज्ञान रूपी नौका द्वारा एवं गुरुदेव से ज्ञान रूपी नौकार कर्णधार बा नाविक रूप से तुमको संपूर्ण पापरू इस संसार उद्धार करदे। जय जगन्नाथ हरिबोल।